लाइव करंट तक। ओके चलो रॉकस्टार्स, लेट्स स्टार्ट। यस सर, ओके चलो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। चलो, सो yesterday we completed with very interesting topic that was law of demand। याद है क्या आपको कुछ? यस सर, चेक करते कितना याद है आपको। क्या करेंगे? चालू हो जाओ। शक्ल देखी नहीं मेरी, चालू हो जाना है। डिमांड इज क्रिएटेड बाय डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड? Price of the commodity, price of related commodity, income of the consumer, habits, tastes and preferences, climatic conditions, size of population, composition of population, level of national income, level of education, marital status, credit facility, interest rates। और क्या क्या पॉइंट्स थे? बस हो गए ओके। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है सर? Other things being constant, as the price of the commodity rises, the quantity demanded falls, and as the price falls, the quantity demanded rises, indicating an inverse relationship between price and the quantity demanded। सही है एकदम? यस सर। मुझे बताओ, एक व्यक्ति को पूछेंगे हम लोग ये प्राइस है और उसमें आपको ये इतनी इतनी डिमांड आप करोगे, तो इस शेड्यूल को व्हाट वी विल कॉल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड व्हेन वी आस्क लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। सही है? डिमांड कर्व लुक्स लाइक डैश, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम। सही है एकदम? यस सर। Then we go ahead and talk about what are the exceptions to the law of demand. Are there some exceptions to law of demand? Yes sir. What are these exceptions to law of demand? Conspicuous goods. So what is conspicuous goods? Demanded only by rich people. Second point, conspicuous necessities. So it is necessity because of its constant usage. Then third, necessities which are essential for living. Number four, future price expectation. Number five, speculative goods. So in the future, अगर अपने को लगता है कि the prices will rise, so even in the rising prices will be demand? Yes sir. अरे in the rising prices we will demand because we are expecting that in future prices will be higher। सही है एकदम? Yes sir। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज स्पेक्युलेटिव गुड्स का भी सेम एक्सप्लेनेशन है। देन सिक्स्थ पॉइंट वी टॉक अबाउट इज एब्सेंस ऑफ नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। एंड सेवेंथ पॉइंट, irrational behavior and impulsive purchase। last में your very favorite, that is Giffen goods। inferior goods are termed as Giffen goods। when the price rises, the quantity demanded rises। when the price rises, the quantity demanded rises, and as the price falls, demand also falls of inferior goods। those goods are called as Giffen goods। easy ekdam? Yes sir। then we went ahead and studied what is the rationale of law of demand। rationale means logic of law of demand। Number one point we talk about is law of diminishing marginal utility। it is pending, right? Second point we talk about is price effect। price effect में we have two effects। number one, substitution effect and income effect। because of availability of substitutes, does law of demand operate? yes sir। and income effect, क्या मेरी रियल इनकम चेंज हो रही है क्या? मतलब एक्चुअल इनकम चेंज हो रही है क्या? नहीं, बट रियल इनकम चेंज हुआ है वैसा फील हो रहा है क्या? यस सर, क्योंकि रियल में आई हैव मनी लेफ्ट विथ मी, राइट? बोलो बच्चों। यस सर। देन थर्ड पॉइंट वी टॉक अबाउट इज अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स और न्यू कस्टमर्स। दोज हु कुड नॉट अफोर्ड इट अर्लियर, कैन दे ऑल्सो अफोर्ड इट नाउ? यस सर, बिकॉज ऑफ द फॉल इन प्राइस। एंड लास्ट में सिंगल यूज और मल्टीपल यूज? मल्टीपल यूज, राइट? सो इफ मल्टीपल यूजेस आर देयर, इफ द प्राइस फॉल्स, हम लोग क्या करते हैं? डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचेंगे, यहां नहीं तो वहां कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे ना उसको। सही है ना? बट अगर उसका सिंगल यूज है तो भले ही प्राइस कम हो जाए तो एक आध एक्स्ट्रा लेंगे, बट बहुत सारा लेंगे क्या हम लोग? नहीं, क्योंकि उसका यूज ही कुछ नहीं है ना, इट इज अ सिंगल यूज। तो ऐसी कुछ बातें हम लोग ने करी थी। बोलो हाय आना।
क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं यहां से? बोलना पड़ेगा आप सबको। अभी आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? नया कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड खत्म, अब आगे बढ़ेंगे। चलो गाइस, इन द लाइव स्ट्रीमिंग कॉन्फिडेंस है क्या आप लोगों को? करो मस्त एकदम अच्छे से रिवीजन। ओके चलो, सो आगे बढ़ते हैं। और आज अभी हम बात करेंगे बहुत ही एकदम ऐसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पढ़ाऊं? बिल्कुल सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन of demand versus increase and decrease of demand. चलो, ये इतना लाड में नहीं आने का, डेंजर है सर। सो व्हाट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। रेडी है सब लोग? फुल पावर एकदम, या। अब जब बात करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, इमेजिन करो मेरे हाथ में एक बलून है। जस्ट इमेजिन। मैं आज मेरी डॉटर को पूछा मैंने, बेटा तेरे पास बलून होगा तो दे दे मेरे को। तो बोले पापा सब खत्म हो गए, सब फूट गए। है अभी तेरे पास? घर पे तो फिर क्या, अभी चाहिए अभी। तो जस्ट इमेजिन मेरे हाथ में एक बलून है। बलून क्या हुआ? बट उसको क्या बोलेंगे? बलून इंक्रीज हुआ कि एक्सपांड हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दोनों वर्ड्स में है ना डिफरेंस है क्या, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लोग क्या करते हो, हाँ एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन एक कोई कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज डिक्रीज कोई एक कॉन्सेप्ट है, बट एक्सपांशन और इंक्रीज क्या ये सेम है क्या, और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज क्या ये सेम है क्या, ये बच्चों को पता ही नहीं है, या अलग है या सेम है, डोंट नो। सो इसीलिए बलून का एकदम सिंपल एग्जाम्पल है। क्या हुआ? बलून वही है, बलून क्या हुआ? बलून फूला ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? बलून एक्सपांड हुआ कि देखो 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 बलून इंक्रीज हुआ, क्या कहेंगे? बलून एक्सपांड हुआ। सही बात है एकदम, यस सर। जब उसमें से हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा कि बलून डिक्रीज होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आप समझ रहे एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, इसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो बलून था ना मेरे हाथ में, बहुत ही एकदम बढ़िया सा कलरफुल एकदम मस्त बलून था। आपको देख के वो बहुत अट्रैक्टिव लगा वो बलून। आप भी वो छोटे बच्चे के जैसे मुझे और एक चाहिए। मान लो आपने और एक लिया, अब आपके हाथ में 2 बलून है। आप रास्ते से जा रहे थे, आपको एक और छोटा बच्चा दिखा, उसके पास अलग कलर का लाइटिंग वाला बलून था। आप वो देख के और आपको बहुत मजा आया, भाई मेरा वाला तो ऐसा नहीं है। तो आप और वहां पे फैल गए रास्ते में, मम्मी पापा को बोले मेरे को लाइटिंग वाला चाहिए। आपके पास और एक बलून आया। अब आपके पास कितने बलून हो गए? 3। पहले 1 था, फिर 2 आए, फिर 3 आए। अब आपके पास जो नंबर ऑफ बलून्स है वो क्या हुए? समझा क्या बात को? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड बिटवीन इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर एकदम बात? यस सर। कंफ्यूजन नहीं ना कुछ भी? ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं, चलो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन की। व्हेन देयर इज, सुन रहे क्या गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग? कम ऑन लेट्स रॉक। व्हेन देयर इज change in demand,
ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। समझा गया बात को? व्हेन देर इज चेंज इन डिमांड, डिमांड बदल रही है बट किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे साहब? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। जब प्राइस के वजह से डिमांड बदलती है, बराबर के नहीं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द एयर दैट आई वॉज ब्लोइंग इज प्राइस, एंड प्राइस के वजह से डिमांड अपनी कम या ज्यादा हो रही थी, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? प्राइस की वजह से। और अच्छे से समझेगा आगे, बट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट में एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज डिक्रीज पहले वो डिफरेंशिएट कर लेता है। सो व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट? प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आगे, when there is change in demand due to factors other than price। क्या बोला सर ने? when there is change in demand ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंक्रीज एंड डिक्रीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को वो बलून बहुत अट्रैक्टिव लगा, इसीलिए आपने और बलून्स की डिमांड करी। वो एक नन्हे मुन्ने छोटे से बच्चे को, आपके जैसा प्यारा प्यारा बच्चा, मुझे बताओ उसको क्या लेना देना प्राइस का? उसको पता है 10 रुपए मतलब कितने होते हैं या 20 रुपए कितने होते हैं? पता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको दिखता है कि ये बस बलून है, ये बलून मेरे को बहुत अच्छा लगा है, ये अट्रैक्टिव बलून है, मेरे को ये बलून चाहिए, विषय खत्म, टॉपिक खलास। सही है कि नहीं? एकदम इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस, वो बोलता है मेरे को बलून वो ये अट्रैक्टिव लगा, मेरे को बलून्स अच्छे लगते हैं, उसके वजह से उसको वो डिमांड करता है, खलास। इसको क्या बोलेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसके पास बलून था और वो बलून क्या हुआ? फूट गया, एकदम से डर गया वो, आज से बलून से खेलना ही नहीं, दुश्मन है वो, क्योंकि उसने डरा दिया था। अब वो बलून की डिमांड कम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिक्रीज बोलेंगे उसको। समझे क्या बात को? सो देयर इज ए डिफरेंस। व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। When there is change in demand due to factors other than price, it is called as what? Increase and decrease। समझ में आया आप सबको? पक्की बात है एकदम? यस सर। ओके, अभी मालिक डिस्कस करते हैं अबाउट व्हाट? एक्सपांशन क्या होता है। किसकी बात करेंगे? एक्सपांशन की। अच्छे से समझना है एकदम। ये क्या होता है ना, बाद में नहीं तो कॉन्सेप्ट जो है ना, बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लग जाता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन किसे बोले और इंक्रीज डिक्रीज किसे बोले। और यहां पे बात खत्म नहीं होती। जब डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस का कॉन्सेप्ट आता है ना, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, बच्चा वहां पे उस समय पे कंफ्यूज होता है। मार्केट चैप्टर जब आता है तब फिर कंफ्यूज हो जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इसका आगे बहुत इंपॉर्टेंस है। समझ रहे बात को? इसीलिए एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी है। So first we now talk about is what? Expansion। एक्सपांशन होना मतलब डिमांड बढ़ना या कम होना? बढ़ना। प्राइस के वजह से है ना, तो यहां पे आप मुझे बताओ प्राइस क्या होती होगी कि जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है? वेरी गुड। सो व्हेन देयर इज, क्या बोलेंगे बॉस? व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस, व्हेन देयर इज फॉल इन प्राइस, सॉरी ऐसे मत लिखो, रुको 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 रुको, अरे यार सर, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। करेक्ट है एकदम? यस सर। चलो इसका सर जी डायग्राम बता दो हमें।
कि डायग्राम होता कैसे होगा। तो दोस्तों ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या है? ये अपना नॉर्मल डिमांड कर्व है क्या? बोलना पड़ेगा आपको। यस सर। अभी पहले एक सेकेंड ध्यान दो, फिर लिखना आराम से, लिखने का समय दूंगा, पहले फोकस करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी मुंडी नीचे रहेगी कि मैं क्या कर रहा हूं आपको पता ही नहीं चलेगा। एंड सडनली विल बी कि साला ये कहां से आ गया ये डायग्राम। अभी एक सेकंड नीचे देख रहे थे, ऊपर देख रहा, डायग्राम बन गया। ध्यान दीजिएगा। सो एक्सपांशन मतलब क्या बोला? व्हेन देयर इज राइज इन डिमांड ड्यू टू व्हाट? फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। परफेक्ट है एकदम। यस सर। अभी मेरा बच्चा फुल कॉन्सेंट्रेट करेगा। देखो सर, दिस इज दी, ऐसा होता है ऊपर इंटर की क्लास में, फुल माहौल, फुल एनर्जी। आवाज आ रही ना तुमको? पूजा मैम की क्लास चालू है ऊपर, फुल माहौल। इसलिए मैं तुमको बोलता हूं बे एनर्जी किधर है तुम्हारा? ऐसे तुम ऐसे, हाँ पढ़ा रहे ना, पढ़ा। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं वाह। ऐसा वो क्लास इंटरेक्टिव होनी चाहिए, मजा आना चाहिए, आप लोगों ने आंसर्स देने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। हम लोग क्लासेस कर रहे हैं ना, वो टॉर्चर सफिशिएंट है आपके लिए, बराबर है कि नहीं? अब खुद और चुप बैठ के अपने आप के ऊपर ऑल जुर्म मत करो। एंजॉय द लेक्चर्स व्हेन यू आर हियर ना, यू शुड एंजॉय द कॉन्सेप्ट, एंजॉय द क्लास, है ना? क्योंकि आप समझो ना, दिन का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू आर स्पेंडिंग हियर, और ऐसे ही रहोगे ना तो एकदम फिर जिंदगी आपकी बहुत ड्राई हो जाएगी, कुछ कलर नहीं रहेगा उसमें। समझ रहे बात को? तो मतलब एकदम ही ज्यादा, अब कल देखो सर, ऐसा ऐसा मत करना, ठीक है? चलो, सो बात हो रही है दोस्तों, किसके बारे में बात हो रही है सर? हाँ, एक्सपांशन की। सो भाई ये जो है ना ओरिजिनल प्राइस है, देख रहे हैं आप लोग? ये जो है ना बॉस, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। करेक्ट है एकदम? यस सर। अभी क्या होगा बॉस, प्राइस कम हो जाएगी ना, सो ये वाला कलर नहीं चाहिए। प्राइस कम होगी ना तो क्या होगा मालिक? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। सो ये P1 और ये Q1 दिख रहा है क्या आपको? सो ये जो है ना भाई, ये वाला Q से Q1 की जर्नी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपांशन। डिमांड फुल ही ना, और बलून एक ही है ना सर? बलून एक ही है मतलब डिमांड कर्व वही है ना? अरे समझा क्या नहीं समझा? मैंने एक ही बलून को समझा क्या बात को? तो बलून वही था ना, तो जब बलून फूला मतलब डिमांड बढ़ी ना, बोलो आया ना, तो एक्सपांड हुआ, बराबर? प्राइस कम हुई, क्वांटिटी बढ़ गई, बट बलून वही है ना अपना, मतलब डिमांड कर्व इज नॉट चेंजिंग, डिमांड कर्व वही होगा, बस उस डिमांड कर्व पे क्या हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। सही है एकदम? सो यहां पे आपको क्या नजर आता है? ये आप क्या देख रहे हो यहां पे कि ये जो है ना दोस्तों, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, रुको मैं पढ़ाता हूं। ये जो है यहां पे आपको क्या नजर आता है कि देयर इज, क्या बोलूं, राइट वर्ड बोलूं कि डाउनवर्ड बोलूं? डाउनवर्ड बोल देता हूं। देयर इज व्हाट? चुप रहे, कुछ भी बोलती है। देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट, देयर इज अ मूवमेंट ऑन डिमांड कर्व, देयर इज अ मूवमेंट। ये पॉइंट से आपको दिख रहा है क्या? ये पॉइंट से इधर से ये इधर आया कि नहीं आया? देखो तो सही कुछ। सो वो डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ ना, मूवमेंट हुआ है डिमांड कर्व पे, यहां से यहां मूव हुआ है पॉइंट, उसको शिफ्ट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? मूवमेंट। समझा गया बात को? अभी एक गहरी सांस लो, छोड़ो, वापस से छोड़ो। अब कोई डाउट है तो पूछो। क्या थोड़ा ऐसा रिलैक्स हो गए? हाँ अब पूछ सकते हैं, दिमाग ठंडा हो गया। एक्सपांशन मतलब क्या है? When there is fall in price, the demand rises. दिख रहा है आपको?
ऑन द सेम डिमांड कर्व, दैट इज द सेम बलून। करेक्ट है ना बेटा? तो इसमें आपने को दिखता है कि देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर है एकदम? आगे बढ़ सकते हैं यहां से। अब फटाफट मेरा बच्चा मेरे को बताएगा कि अब हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बोलो ना, कॉन्ट्रैक्शन का। सो मेरा बच्चा अभी कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलेगा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? व्हेन डिमांड फॉल्स। सर एक बार दोबारा बता दो, डायग्राम रिपीट कर दो एक बार, थोड़ा सा रिवाइंड कर दो एक बार। व्हेन डिमांड फॉल्स, अब इधर ध्यान देना, व्हेन डिमांड फॉल्स। सर इधर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा, पहले पढ़ा दूं क्या? तुम हमें अभी ध्यान में रखना, अभी ये नया एक टाइप का क्वेरी आएगा। सर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आएंगे? मालिक पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट पहले क्वेश्चन बताता हूं, फिर आप बोलोगे सर हमें नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट पढ़ाओ। पहले मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं, आप बस समझो अच्छे से, ठीक है? रिलैक्स एकदम। सर क्या हो रहा है? चिल एकदम। तेरे साथ क्या हो रहा है? व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू राइज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। अरे बोलो यस और नो। अब ये ना फालतू कमेंट मत करना, सर बलून फूटा तो डिक्रीज हुआ ना। उस दिन मैंने बोला आप लोग सीए हो, वो बलून वाला जो बात हम लोग कर रहे थे ये आपको समझाने के लिए है। बलून पे मत अटको, वहां पे इधर फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। कैसे रे? ओके, सो कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं अपन सर? व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू व्हाट? राइज इन प्राइस। बराबर। अब डिमांड फॉल हो गया मतलब गुब्बारा क्या हो गया? पिचक गया ना। अरे बोलो ना भाई। यस सर। नीलम शिवहरे, बेटा अभी तक हमारा गुब्बारा फटा नहीं है, ठीक है? तो आप जरा कंट्रोल करें अपने भावनाओं को। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। सो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, यहां पे यही अपना डिमांड कर्व। तुम लोग डायग्राम पे फोकस करो, नहीं तो फिर आपका डायग्राम मिस हो जाएगा। फिर आप पूछोगे कि सर डायग्राम आया कैसे? लिखने का समय दूंगा मैं, डोंट वरी। सो ये जो है दोस्त, ये क्या हुआ? ये फिर अपना डिमांड कर्व हुआ। अभी दोस्त यहां पे ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी आपको दिख रही है ये। सो दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। करेक्ट है एकदम? बट अब क्या हुआ मालिक? प्राइस बढ़ गई, तो प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। सो दिस इज P1 एंड दिस इज Q1। सो कहां से कहां चले गए अपन? हम लोग ये Q से Q1 इधर आए ना, ये तो इसको क्या बोलेंगे सर? ये ऐसे इधर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हुआ ना, ये बोलो तो सही, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन अपवर्ड मूवमेंट। समझे बात को? एंड दैट्स इट। दिस इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट। आप देख रहे हो बलून वही है। चलो कुछ क्वेरी है तो पूछ लो। इजी करने का एकदम कॉन्सेप्ट हो गया। चलो नोट कर लो इसको, इतना दो डायग्राम बना लो कि पूरा पहले अभी इंक्रीज डिक्रीज भी पढ़ा दो सर, फिर साथ में ही लिख लेते हैं। इंक्रीज डिक्रीज भी पढ़ा देता हूं तो आपको स्पेसिंग वगैरह सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। पढ़ लो ये फिर एक साथ अभी कॉन्सेंट्रेट करके। अब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में आपके हिसाब से कोई आपत्ति नहीं है। अब हम लोग मालिक चलते हैं किधर? अगले कॉन्सेप्ट पे जो है इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो अभी हम लोग क्या कहते हैं इंक्रीज के बारे में। अभी चलो फुल पावर कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को।
सर वैसे लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है ना, एज अदर थिंग्स कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। कुछ आप हेल्प कर सकते हैं मेरी? एक क्वेरी है सर, वो एक बार प्राइस एंड क्वांटिटी की लाइन बताओ ना। प्राइस क्वांटिटी, कोई बात नहीं, चलो होता है ये उम्र में। अभी इंक्रीज की बात करेंगे, ध्यान नहीं देते ना, फालतू फालतू क्वेरी पूछते रहते फिर। चलो सो इंक्रीज की अब बात करते हैं। अब व्हाट इज इंक्रीज? व्हेन डिमांड राइजेस। मैं कितना आज स्लो पढ़ा रहा हूं, आराम से एक एक जो बोल रहा हूं वो चीजें लिख रहा हूं और डायग्राम बना रहा हूं। लाइव स्ट्रीम वाले कॉन्सेंट्रेट करो, घर में चिल मत करो, बहुत फटके पड़ेंगे आपको। व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है ना बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को उसकी आदत है, तो आप बोल रहे हो कि भाई प्राइस का फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसको डिमांड करूंगा तो करूंगा ही। डिमांड बढ़ा दोगे आप अदर देन प्राइस प्योरली, बराबर? या तो आपकी इनकम बढ़ गई, इस वजह से आपने डिमांड कर ली, बराबर क्या नहीं? सो एटसेट्रा, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट अदर देन प्राइस इसको क्या बोलेंगे अपन? जाहिर सी बात है, तो डिमांड बढ़ेगी ना। मतलब इफ यू आर हैबिचुअल, डिमांड बढ़ेगी, मतलब डिमांड बढ़ने के फेवर में होने चाहिए, नो डाउट। ऑब्वियसली इनकम आपकी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? आपकी डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट, एकदम। इनकम बढ़ गई, हैबिचुअल हो आप, आपने एडवर्टीजमेंट देखा और आपको वो प्रोडक्ट पसंद आया, इस वजह से आपने उसको खरीदा, बराबर है कि नहीं? तो अभी इसका सर डायग्राम कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सो अभी आप देखेंगे यहां पे कि ये जो है ये अपना डिमांड कर्व है, जो पहले भी था। जो बच्चा पूछ रहा था कि सर वो प्राइस और क्वांटिटी का लाइन एक बार बता दो, तो देखो बेटा, हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस पे प्राइस का ऐसा लाइन ड्रॉ किया, फिर जहां पे वो डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया ना, वहां से नीचे लाइन ड्रॉ किया और टडा, प्राइस एंड क्वांटिटी। मिला क्या नहीं मिला? यस सर। कितना ऑसम था ना ये। मजा आ गया सर। अभी यहां से आगे बढ़ते। अभी क्या हुआ दोस्त, आपको जैसे हम लोग बात कर रहे थे, वो बलून पसंद आया ना आपको, तो आपको और बलून चाहिए, आपको और बलून चाहिए, बोलो हाँ या ना? आपको मैंने कहा था कि वो बच्चे को प्राइस का कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वो 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, उसको वो बलून चाहिए, मतलब चाहिए। तो अब वो क्यों क्वांटिटी डिमांड नहीं कर रहा है, अब वो क्या बोल रहा है, मेरे को और बलून चाहिए। सो नाउ ही वॉन्ट्स Q1 बलून। ओरे बाबा रे, उसको कितना बलून चाहिए? Q1 बलून चाहिए उसको। अब तुम बताओ, ये Q1 बलून क्या ये डिमांड कर्व डी पे अवेलेबल है क्या? क्या Q1 क्वांटिटी डिमांड कर्व डी पे अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो मतलब क्या होगा यहां पे? यहां पे क्या होगा? यहां पे और एक डिमांड कर्व आया, समझा? तो डिमांड कर्व मतलब बलून बोला था ना, अब और एक बलून है कि नहीं आया? अरे समझा कि नहीं समझा? Q1। सो ये जो है ये D1। सो एट द सेम प्राइस यू वांट नाउ व्हाट? Q1 quantity of balloons. So at the same price, Q1 is not available at demand curve D. For that you need a new demand curve, that is demand curve D1. बोलो भाई, कॉम्प्लिकेटेड है कॉन्सेप्ट? अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको सिंपल करने की। सही है एकदम? यस सर। तो यहां पे आप देख सकते हो
कि क्या हो रहा है यहां कि सर डिमांड कर्व में क्या हुआ, वो एक जगह से अब दूसरे जगह क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, उसको इंक्रीज बोल रहे हैं। सो इसको क्या बोलेंगे सर, देयर इज अ, किधर शिफ्ट हुआ वो, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। समझे क्या बात को, क्योंकि डिमांड कर्व डी से D1 आ गया, इसको बोलते हैं अपन क्या, इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस कहीं चेंज हो रही क्या, जरा देखिए ना दोस्तों, प्राइस कहीं पे भी जरा भी चेंज हुई क्या, प्राइस नहीं। ये सारा कुछ चीजें जो हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। बेस्ट है, बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत चर्चा करते हैं। सर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल बोलो ना, बलून छोड़ के। ओके, आपको चॉकलेट पसंद है कि नहीं, और आप चॉकलेट भी खाते हो, तो आपने खा ली चॉकलेट। बट ये कौन है, शुभजीत दास, आपके बाबू ने आपसे चॉकलेट मांगी, तो आप क्या करोगे, सेम प्राइस पे अब आप क्या करोगे, 2 चॉकलेट खरीदोगे, बराबर। बाबू ने 5 चॉकलेट मांगी, तो सेम प्राइस पे आप 5 चॉकलेट खरीदोगे, बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चॉकलेट्स की डिमांड एक्सपांड हुई कि चॉकलेट की डिमांड इंक्रीज हुई, चॉकलेट की डिमांड इंक्रीज हुई, क्योंकि सेम प्राइस पे आपने 1 के जगह 2, 2 के जगह 4, 4 के जगह 8, आपने नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा मांगी। सही है ना एकदम, यस सर। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज इन डिमांड। और बलून का भी बेटा रियल लाइफ एग्जांपल ही है ना, एक छोटा बच्चा, उसको प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, बराबर के नहीं। ही फाइंड्स दैट बलून अट्रैक्टिव, ही फाइंड्स द कलर्स वेरी फैसिनेटिंग, इसीलिए वो एक नहीं, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा, उसको बहुत सारे बलून्स चाहिए, बराबर। उसको प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, बोल दो ना जरा। अब बात करेंगे आखिरी चीज जो है डिक्रीज। अब डिक्रीज में क्या होगा, डिक्रीज में क्या होगा, when demand falls due to factors other than price, ये इंपॉर्टेंट है, बराबर। ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि आप हो गए लेटेस्ट से हेल्थ कॉन्शियस। क्या हो गए आप, हेल्थ कॉन्शियस। पहले आप एक दिन में 2-3 पेप्सी पी जाते थे, बराबर के नहीं। दोस्तों से बातें करते करते कॉलेज के कैंटीन में, चल पेप्सी लेके आ, चल कोक लेके आ, आप लोग पीते थे। बट सडनली आपको रियलाइज हुआ, ओ नो, इसके अंदर बहुत शुगर है, ये अपने सेहत के लिए हानिकारक है, बराबर। इससे हम लोग मोटे हो रहे हैं, ओबेसिटी बढ़ रही है, बराबर के नहीं। नहीं बाबा, ये सब नहीं कंज्यूम करने का। आज भी प्राइस पेप्सी और कोक की उतनी ही है, बट क्या आपने पेप्सी और कोक को अब कंज्यूम किया, नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला, नहीं सर हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए। पहले हम बाहर जाते थे, भूख लगी, चलो भाई मैकडॉनल्ड चलते, आने दे फ्राइज, आने दे बर्गर, आने दे भाई, नुस्ता टाको आने दो, बराबर के नहीं। बट अब आप हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से क्या हो गया, नहीं नहीं भाई, बर्गर फ्राइज पिज्जा ये जंक फूड नहीं खाने का, बराबर के नहीं। मस्त अपना घर का अच्छा रोटी सब्जी दाल चावल मस्त है एकदम खाने का, करेक्ट है। तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए। सो हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से व्हेन यू अवॉइडेड दो सॉफ्ट ड्रिंक्स, यू अवॉइडेड दैट जंक फूड, दैट फास्ट फूड, उनकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। बट प्राइस अभी भी उतनी ही है ना सर, प्राइस तो कहीं चेंज हुई क्या, बोलो बोलो बोलो, प्राइस चेंज हुई नहीं हुई सर, फिर भी उनकी डिमांड कम हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे रियल सेंस में कि सर आर डिमांड इज डिक्रीज्ड, उनकी डिमांड डिक्रीज हो गई, धंधा गिर रहा है उनका, डिमांड कम हो गई। समझा गया बात को। आपने चॉकलेट्स की डिमांड कम कर दी, क्यों, क्योंकि आपके दांत खराब होने लग गए, डॉक्टर ने बोला चॉकलेट मत खाना, बराबर के नहीं। तो क्या हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी। आई बात समझ में, यस सर। सो अब इसका डायग्राम देखेंगे। इतना मजा
आ रहा है क्या मजा आपको? सर आप ही को आता होगा पढ़ाने मजा, हमको तो बोर हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज साला सुबह सुबह क्या कर रहा हूं मैं जिंदगी में, ऐसा बोलने का नहीं। अभी दिस इज द डिमांड कर्व। इस प्राइस पे हम लोग कितना डिमांड कर रहे थे? बहुत सारा। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। सर हम लोग इतना डिमांड कर रहे थे। सर कैन वी से दैट फैक्टर्स विच इंक्रीजेस द डिमांड एज फेवरेबल चेंजेस इन फैक्टर्स? हाँ बेटा, यू कैन से। आपने 12th में यही पढ़ा था, फेवरेबल फैक्टर्स, है ना बेटा? ऐसा करने से इंप्रेस नहीं होते बेटा। अभी देव सरकार इंप्रेस करने का निंजा टेक्निक है, बराबर। अब जाहिर सी बात है ना, ये हेल्थ कॉन्शियस, ये अनफेवरेबल फैक्टर हो गया। उसी सेंस में बात करेंगे। बताओ कैसा पॉसिबल है कि अगर अनफेवरेबल फैक्टर हुआ और डिमांड बढ़ेगी? बताओ, कोई सेंस है इस बात का? नहीं, कोई बात नहीं। चलो सर, जीडी स्टूडेंट के भी डाउट सॉल्व कर दिया करो। ओके, आप पूछ लिया करो। ओके, सो अभी अपन ने क्या करा? सेम प्राइस पे, दिख रहा है आपको सेम प्राइस? डायग्राम पे फोकस करने का। सर कितने अच्छे डायग्राम बना रहे। मैं प्रॉपर है ना एकदम सही डायग्राम बनाता हूं, ताकि आपको वो देख के कैसे बने डायग्राम्स वो इंटरेस्ट भी आए और आप भी फिर अच्छे से ड्रॉ करेंगे उसको। सो सेम प्राइस पे नाउ वी आर डिमांडिंग व्हाट? क्वांटिटी Q1। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वांटिटी Q1, क्या ये अपने को डिमांड कर्व डी पे अवेलेबल है क्या? तो क्या करना पड़ेगा अपने को? अपने को न्यू डिमांड कर्व पे जाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? सो दिस इज व्हाट वी हैव इज द न्यू डिमांड कर्व, दैट इज डिमांड कर्व D1। सो यहां पे व्हाट डू यू सी? यहां पे क्या हुआ? डिमांड कम हो गई ना। सो देयर इज व्हाट? अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। मजा आ गया सर। एंड टडा, this is what my dear friends, the concept of what? Expansion, contraction, increase and decrease, shift versus movement वाला कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक उसमें भी पूछा जाता है कि शिफ्ट कब और मूवमेंट कब किसको कहते हैं, तो ये शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट भी कॉन्सेप्ट हो गया। ये कॉन्सेप्ट जब आप बुक में पढ़ते हो तो आपको ये 2 से 3 पेजेस में आपको कॉन्सेप्ट दिखता है। जब ये अपन समरीज बनाते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ये अपना 1 पेज में चारों डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन सामने है, कोई टेंशन नहीं है। समझे बात को? सो अब मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूं, आप कुछ भी जवाब देंगे? हाँ, ऐसा हाँ नहीं बोलने का। आप कुछ भी पूछो, हम कुछ भी बोलेंगे, ठीक है? ऐसा थोड़ी होता है। चलिए आइए बताइए मुझे। व्हेन देयर इज, फिर लिखेंगे आराम से, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कंफ्यूज नहीं होने का बेटा। When there is change in demand due to price, it is called as expansion and contraction. And when there is change in demand due to price, it is called as, अरे इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलने का। हाँ, and when there is change in demand due to price, and change in demand due to price, and due to factors other than price, सही है एकदम? यस सर। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी। हूं क्या हूं? क्या बोलेंगे वो बताओ? हूं, हाँ हाँ हाँ, हुआ हुआ हुआ। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी। प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, तो काहे कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो? मैं तो अपना सही पूछ रहा हूं ना। बताओ, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, एंड प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, सही है एकदम? यस सर। हैबिट्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस के वजह से डिमांड बढ़ा दी। क्लाइमेटिक कंडीशंस के वजह से चाय की डिमांड कम हो गई, क्या बोलेंगे? डिक्रीज, सही है एकदम। मुझे बताओ, व्हेन देयर इज द राइटवर्ड शिफ्ट, इट इज कॉल्ड एज, व्हेन देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, देखो ना सामने है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, करेक्ट एकदम? नोट कर लो। मजा आ गया सर। तब तक हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग वालों के साथ खेलेंगे। उनके अतरंगी अतरंगी कुछ सवाल जो है
उनको निपटाएंगे। सर इज देयर एनी चेंज इन सिलेबस फॉर नवंबर 23? होगा तो उसके हिसाब से पढ़ा दूंगा, तू चिंता मत कर। तो अभी ये जो चल रहा है उसका पढ़ाई कर। मैगी का भी ऐसे ही हुआ था, कॉज लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए थे। वेरी गुड बेटा, बहुत आगे जाएगा। तो इंक्रीज डिक्रीज ऑफ डिमांड में डिक्रीज डायग्राम बताइए। देखना मैं कैसे बताऊं, आंखें खोल के तू देख सामने ही। ठीक है, सर सिंगल यूज प्रोडक्ट को हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी तो मान सकते हैं। नहीं मान सकते, काय को मानने का है? हाँ, अपने आप को अल्फ्रेड मार्शल समझ रहा क्या तू? हाँ, तो कैसे रे? तुम लोग का प्रॉब्लम पता है कि क्या होता? सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता, तुम अपने आप को जबरदस्ती है ना, ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या। एग्जाम में फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, आप खुद का ही थ्योरी बना लेते हैं। बेचारे एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, उनको तो रखो बाजू में, उनकी कोई इज्जत नहीं, तुम अपना ही थ्योरी बना रहे। अरे कोई प्रोडक्ट अगर सिंगल यूज है, उसकी प्राइस कम हुई तो डिमांड भी बढ़ा ही सकते हैं ना, नहीं बढ़ा सकते क्या? फिर नॉनसेंस। रुको, और कुछ? सर आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे? बहुत सारे आए थे मेरे को, 78 कुछ आए थे परसेंटेज, और उस जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करते थे। 78 नहीं, 75 थे, 10th में 80 प्लस थे। होशियार हूं मैं, समझा क्या? सर मैं आप समझ गया, देखो सर मैं आप समझ गया कि इंक्रीज एंड डिक्रीज कैन बी पॉसिबल बट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज रेयरली पॉसिबल। ऐसा कौन बोला भाई तेरे को? मैं इसे तेरे कान में आके बोला ऐसा? हाउ इट एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, हाउ इट इज रेयरली पॉसिबल? टेल मी। बोथ आर इक्वली पॉसिबल ना, रेयरली पॉसिबल म्हणे। सर आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आता है, मेरे को भी पढ़ाने में बहुत मजा आता है। सर सॉन्ग प्ले कीजिए ना। नहीं, मैं क्वेरीज सॉल्व कर रहा ना मैं, फिर तुम ही बोलते हो क्वेरीज नहीं सॉल्व करते। सर ऐसा गुस्सा मत कीजिए प्लीज, पूछने में डर लगता है, सॉरी फॉर अदर पुअर क्वेश्चनिंग। मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूं, यही तो मेरा प्यार है पागल। जहां प्यार होता है वहां लड़ाई झगड़ा तो होती ही रहती है। सर उस जमाने में मतलब, भाई मेरी उम्र हो गई बेटा, अभी 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। एंड गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, सर आनंद सर को बोलिए उनकी सीए जर्नी बताने को। हाँ बोलता हूं, बस अभी मिलेंगे ना, बोलता हूं। बोला सर आज अकाउंट्स मत पढ़ाओ, आज जर्नी बताओ, जर्नी कैसे सीए बने। चलो हुआ क्या दोस्तों? चलो भैया चलो जल्दी। मैं तो बोल दूंगा राज सर को कि आप लोगों ने लेट किया, स्लो स्लो लिख रहे थे आप लोग। मैं तो हो गया था मेरा पढ़ा के 10 बजे। सो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आज का कौन सा लेक्चर है भैया? 8 लेक्चर है। कपल ऑफ डेज में विल बी शिफ्टिंग टू आवर एसपीसी प्राइम ऐप।
So if you haven't yet taken any admissions, so please फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना दोस्तों, so that आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड्स मिल जाएंगे. आप उस पर साइमल्टेनियसली चेक भी कर लोगे कि आपको कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि फिर 100% जब हम लोग ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर आपका कोई सिलेबस कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना. सो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेना. सर आप अपनी जर्नी बताओ, यूट्यूब पर अवेलेबल है बाबू. क्लास का समय क्या है, पढ़ने के लिए आए ना अपन, तो जिस दिन तबीयत से टाइम पास करना होगा ना एकदम भयंकर करेंगे. तुम बोलोगे सर बस कराओ आज टाइम पास मत करो, तो भी मैं मानूंगा नहीं मैं. बट जिस टाइम पे पढ़ना है वो फुल पढ़ना है, ठीक है. ओके बच्चों, डन है क्या? हाँ जी, यस, ओके. सो आई बिलीव आप लोगों को मस्त समझ में आया होगा अच्छे से एकदम. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन. देखो ये सेम सारी चीजें हम लोग को सप्लाई में भी काम में आने वाली है. ये मतलब सप्लाई में सिर्फ ये ऑपोजिट होने वाला है सब कुछ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा सप्लाई में भी. और फिर मार्केट में और डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है. सो अभी ऐसा लगता होगा कि ये बहुत है ना एकदम ऐसे चिंटू पिंटू कॉन्सेप्ट है, बट नहीं है उतना, ठीक है. अब देखो कुछ बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे. 99%, 90%, 99% प्रोबेबिलिटी है कि मैं मंडे को लेक्चर ले लूंगा करके, ठीक है. बट अगर मेरा गले की बैंड बज गई तो आई वोंट बी एबल टू टेक लेक्चर ऑन मंडे. सर आप ऐसा प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो कि आपके मंडे को गले की बैंड बजेगी करके? तो मेरा 16 अप्रैल को मेरा इंदौर में मैराथन लेक्चर है ऑडिट का, ठीक है. सो वो लगभग 10-12 घंटे फुल डे चलेगा, बराबर. और वैसे तो मैं टाइम से आ जाऊंगा, मेरी 11 बजे की फ्लाइट है, तो आई रीच पुणे बाय 12:31. बट जस्ट इन केस अगर गले की बैंड बज गई तो फिर मैं आपका मंडे को लेक्चर नहीं लूंगा. बट अगर मैंने आपका मंडे को लेक्चर नहीं लिया, बराबर, तो मैं आपका जो सैटरडे रहेगा ना अगला, मतलब उस वीक का जो सैटरडे रहेगा, मैं उस सैटरडे को फिर आपका लेक्चर लूंगा. मेरा हिसाब एकदम सिंपल है, मैं सैटरडे संडे आपको छुट्टी दूंगा, बराबर है. बट अगर हफ्ते में किसी रीजन के वजह से कोई छुट्टी हो जाती है, क्लास में कोई टेक्निकल इशू आ गया या कुछ भी अनप्लैन्ड हॉलीडे हो गया, बराबर, सो दैट वी विल कवर अप ऑन सैटरडे. मेक सेंस? यस सर, ओके. सो ऐसी ये बात है. तो मिलते हैं मंडे को, इसी माइंडसेट से चलते हैं, मिलते हैं मंडे को, ठीक है. और कंटिन्यू करेंगे मंडे को. बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो है इलास्टिसिटी. देखना मंडे को सीधा आएंगे और इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे. तो सैटरडे संडे आप ये अच्छे से रिवीजन कर लेना, नोट्स आपके पास पूरे हैं. क्योंकि अगर मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूं और फिर इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तो जितना टाइम इलास्टिसिटी पढ़ाने के लिए चाहिए वो अपने लिए एप्ट, सफिशिएंट, एडिक्वेट नहीं होगा, ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, बाय बाय.